حضرت آسیہ علیہ السلام کی حیرت انگیز اور ایمان افروز داستان۔ ایک ایسی خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کے لیے مثال بنا کر بیان فرمایا۔ ہر فرعون کے مقابل ایک آسیہ ضرور اٹھتی ہے جو حق کا علم بلند کرتی ہے۔ جنت کی منتخب ملکہ جس نے دنیا کی شان و شوکت، سونے چاندی کے محلات اور اقتدار کی چمک دمک کو ٹھکرا کر اپنے رب کی رضا کو اختیار کیا۔ وہی آسیہ علیہ السلام جس نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جو خود کو ربکم الاعلی کہتا تھا۔ یہ راستہ آسان نہ تھا، خاص طور پر اس وقت جب ایمان والوں کی حفاظت اور سچائی پر ڈٹ جانا مقصود ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی اولین خواتین میں شامل اور ان 4 عظیم عورتوں میں سے ایک جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ صبر و استقامت کی ایک بلند مثال، جنہوں نے بدترین اذیتوں کے باوجود اپنے رب کی عبادت اور محبت کو نہ چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنی والدہ کے بعد ماں جیسا مقام دیتے تھے۔ آسیہ نہ کسی نبی کی بیٹی تھیں، نہ کسی نبی کی زوجہ یا پوتی، بلکہ ایک جابر، سنگ دل اور ظالم حکمران کی بیوی تھیں۔ محلوں کی ملکہ ہونے کے باوجود انہوں نے سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے مگر عورتوں میں صرف آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کمال کو پہنچیں۔ یہاں کمال سے مراد ایمان، تقوی اور اعلیٰ اخلاق کی بلند ترین منزل ہے۔ تاریخ کے مطابق ان کا اصل نام آسیہ بنت مزاحم تھا اور وہ مسیح علیہ السلام سے تقریباً 13 صدیاں قبل کے دور میں رہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے خاندان کا پس منظر بھی نہایت حیرت انگیز ہے۔ روایات کے مطابق ان کے پردادا ولید مصر کے اس فرعون میں شمار ہوتے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حکمران تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریبی رشتہ میں تھا اور بعد میں وہ ان پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے شوہر فرعون تھے، ایک ایسا ظالم بادشاہ جس کے سر پر جواہرات اور قیمتی موتیوں سے مزین تاج ہوتا تھا اور جس کی سلطنت نہایت وسیع تھی۔ اس کا عظیم تاج اور بھاری جسم لوگوں پر ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ اس کا تخت زمین سے 4 زینے بلند تھا اور اس کے ارد گرد نرم گدے اور نفیس قالین بچھے ہوتے تھے جہاں وزراء بیٹھتے اور مہمانوں کی ضیافت کی جاتی۔ جب فرعون کسی سے گفتگو کرتا تو لوگ خوف کے باعث کانپتے ہوئے اس کی بات سنتے۔ اسی خوف نے لوگوں کو اس کی حد سے بڑی ہوئی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس میں وہ صفات بھی بیان کرنے لگے جو حقیقت میں موجود نہ تھیں۔ یہ سب دیکھ کر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے بت پرستی کو مضبوط کرنے لگا۔ اس نے جہالت اور کم علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف خود کو معبود کہا بلکہ یہاں تک کہہ دیا انا ربکم الاعلی۔ دوسری طرف حضرت آسیہ علیہ السلام پاکیزگی، دیانت، عفت اور شرافت کی روشن مثال تھیں۔ لوگ فرعون کے خوف سے نہ کھل کر سانس لے سکتے تھے اور نہ سکون سے سو سکتے تھے، مگر حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور مضبوط یقین کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ فرعون کے اتنے قریب رہتے ہوئے بھی ہرگز خوف زدہ نہ تھیں۔ ایک رات فرعون شدید گھبراہٹ کے ساتھ نیند سے بیدار ہوا۔ وہ ہانپتا ہوا بستر پر بیٹھ گیا، گویا موت کی کیفیت سے گزر رہا ہو۔ اس کے دل میں یہ خوف اس ہولناک خواب کی وجہ سے تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جو مصر کے تمام گھروں اور محلات کو جلا کر راکھ کر رہی ہے اور اہل مصر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ خواب حضرت آسیہ علیہ السلام کو سنایا اور صبح ہوتے ہی اپنے بڑے پجاری کو بلانے کا حکم دیا۔ پجاری نہایت عاجزی کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا، سر جھکا کر فرعون کی تعریف کرنے لگا۔ فرعون نے اسے سیدھا کھڑا ہونے اور غور سے سننے کا حکم دیا اور کہا، اے پجاری، میں ایک خوفناک خواب دیکھتا ہوں، بار بار وہی منظر آتا ہے اور میں گھبرا کر جاگ اٹھتا ہوں۔ پجاری نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، وانی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ یہ بچہ تمہارے گھر اور تمہارے خاندان کی تباہی کا سبب بنے گا۔
ये सुनकर फिरौन के दिल में शदीद खौफ उतर आया। पुजारी के जाने के बाद फिरौन दुख और परेशानी के आलम में अपने महल में चहलकदमी करने लगा। उसे फौरी हल तलाश करना था ताकि अपने माल और दौलत, सल्तनत और तख्त को महफूज रख सके। वो पुजारी की बात को लम्हा भर के लिए भी फरामोश न कर सका। आखिरकार शैतान ने उसे एक रास्ता दिखाया। अपनी सल्तनत और अपने आप को बचाने के लिए बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को मार डालना जरूरी था। आखिरकार बनी इसराइल के लोग पहले ही गुलाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, तो मरने से क्या फर्क पड़ता। इस खौफ की वजह से फिरौन ने हुक्म दिया कि लड़कियां छोड़ दी जाएं, मगर हर लड़के को एक एक करके कत्ल किया जाए। कुरान में बयान है, वज़कुर फिल किताब इज़ नज्जयनाकुम मिन आले फिरौन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब यक़्तुलून अब्नाकुम व यस्तहयून निसाकुम वफ़ी ज़ालिकुम फ़ितनतुम मिर रब्बिकुम अज़ीम। बनी इसराइल के मर्द बच्चों के कत्ल से मिस्र के कप्ती सख्त परेशान हुए। वो कहते थे कि हर साल बनी इसराइल की तादाद कम हो रही है, अब अपने घरों और खेतों में काम के लिए काफी लोग नहीं मिलेंगे। इसी वजह से फिरौन ने हर 2 साल बाद लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया। इधर दूसरों की नजरों से दूर एक मंसूबा तैयार हो रहा था। याबित के बच्चे को जन्म देने का वक्त करीब आ रहा था। वो नहीं जानती थी कि क्या करे। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वो बनी इसराइल की हामिला खवातीन पर नजर रखने वालों से छपने में कामयाब हुई। याबित ने एक वफादार दोस्त पर भरोसा किया जो उसकी हामिलगी छुपाने में मदद करती थी। ये औरत हमल के आखिरी महीनों में अक्सर उससे मिलने आती। आखिरकार याबित ने एक लड़के को जन्म दिया। बच्चा बहुत हसीन और खूबसूरत था। उसने उसे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम दिया। वो इतनी खुश थी जैसे पूरी दुनिया उसकी हो गई हो। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि यह खूबसूरत बच्चा भी फिरौन के जुल्म की नजर हो सकता है, खुशी ज्यादा देर न रही। घंटों के गुजरने के साथ उसके दिल में खौफ बढ़ता गया। वो डरती थी कि उसका बच्चा छीन लिया जाएगा। बच्चे की हिफाजत के तरीके न जानने की वजह से याबित तकरीबन गम से पागल होने लगी। अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि उसे सही रास्ता दिखाए और उसके बच्चे को फिरौन की जुल्मत से महफूज रखे। वो बहुत ज्यादा दुआ करती रही। आखिरकार थकन और कमजोरी के आलम में सो गई। जब वो जागी, उसके दिल में अजीम सुकून था, गोया तमाम बोझ उतार दिए गए हों। अब वो जान गई थी कि उसे क्या करना है। अल्लाह ताला ने हजरत याबित अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बच्चे को एक छोटे संदूक या कश्ती में रखकर नदी में डाल दे, बगैर खौफ और मुकम्मल भरोसे के साथ कि अल्लाह की हिफाजत में है। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि जल्दी से छोटा संदूक ले आए। बच्चे को उसमें रखा, फिर रहमो मोहब्बत के आलम में एक बार फिर अपने बेटे को गोद में उठाया, उसके माथे पर बोसा दिया, उसकी खुशबू सूंघी, दोबारा बोसा दिया और दोबारा खुशबू सूंघी। आंखों में आंसू थे जब उसने अपने बेटे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखकर दरियाए नील की रवानी पर छोड़ दिया। वो रोती रही और देखती रही कि संदूक धीरे धीरे पानी में बह रहा है। मां, जिसने अपना बच्चा नील में छोड़ा बगैर ये जाने कि वो कहां जाएगा, जुदाई के दर्द से बुरी तरह रंजीदा थी। अल्लाह ताला ने उसके दिल को सब्र और यकीन की रोशनी अता फरमाई। वो अपने रब पर भरोसा करती रही, क्योंकि और कौन उसे सुकून दे सकता था। उम्मीद के साथ मां ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कहा कि वो संदूक का पीछा करे और अपनी नजर उससे ना हटाए, हत्ता कि एक लम्हा भी। इस तरह ये मालूम हो सकता था कि नील की लहरें उसे कहां ले जाएंगी। इसी दिन फिरौन और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त नील के किनारे बैठे हुए थे। सूरज की रोशनी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। उनके इर्द गिर्द कई खादिम और महल के लोग मौजूद थे। अचानक हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ किनारे की तरफ बह रहा है। जब वो करीब आया तो साफ नजर आया एक लकड़ी का संदूक। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने एक खादिम को पुकारा और हुक्म दिया कि वो फौरन इस संदूक को ले आए। जब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने संदूक खोला तो उसने वो देखा जो उसकी तवक्को में ना था। एक बच्चा अभी दूध पीने की उम्र में रोशनी की मानिंद दमक रहा था।
बच्चा फौरन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। सब कह रहे थे, देखो इस बच्चे की कितनी खूबसूरती है। इस जालिम शख्स ने उसे पानी में छोड़ा। इर्द गिर्द के लोग बच्चे में दिलचस्पी ले रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ हंसा रहे थे और कुछ खुशी से उसे उठाकर देख रहे थे। जब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने बच्चा अपनी गोद में उठाया तो उसके दिल में अजीब एहसास जागा। बच्चे का चेहरा कनानी लोगों की तरह लग रहा था। उसने सोचा, ये यकीनन बनी इसराइल के बच्चों में से एक है। बच्चा अभी पैदा हुआ था। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने हैरत से सोचना शुरू किया कि ये कैसे फौजियों से बचकर यहां पहुंचा। अल्लाह ताला की इजाजत से नदी ने संदूक को सीधा फिरौन के महल तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाएगा। जो कुछ अल्लाह चाहता है वो जरूर होता है। जल्द ही हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ये हकीकत अपनी आंखों से देखेंगी, मगर उस वक्त वो उससे गाफिल थीं। जब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने बच्चा महल में लाया, फिरौन ने उसे कत्ल करने का इरादा किया, मगर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने रुकवा दिया। उसे मत मारो, उन्होंने कहा, मैं उसमें बुलंद और रोशन जहानत देखती हूं और ये दूसरों से बेहतर लग रहा है। मजीद बरा ये हमारे लिए सुकून का सबब भी बन सकता है। शायद एक दिन ये हमारे काम आए या हम उसे अपना बेटा बना लें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? फिरौन अमूमन हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की ख्वाहिशात को रद्द नहीं करते थे। जब उसने देखा कि हजरत आसिया अलैहिस्सलाम बच्चे को कितना चाहती हैं, तो उसने हुक्म दिया कि बच्चा उनकी हिफाजत में दिया जाए। यूं अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के हाथों मारे जाने से बच गए। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने बच्चे को अपनी गोद में रहमत और शफकत से देखा और सोचने लगी। वो नरमी से उसके बालों को छू रही थीं। दिल में मोहब्बत का जज्बा भर गया था। अल्लाह ताला ने उनके दिल में इस बच्चे के लिए मोहब्बत डाल दी थी, गोया ये बच्चा उनका अपना हो। अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने उसे बहलाने की कोशिश की, मीठे अल्फाज से सरसराहटें की, लोरी सुनाई, गोद में झिलाया, मगर कुछ काम न आया। बच्चा रुकने का नाम ही न ले रहा था। वो भूखा था और किसी के दूध पीने की जरूरत थी। क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था, इसलिए शहर में एक औरत तलाश करने का पैगाम भेजा गया जो बच्चे को दूध पिलाए। आखिरकार एक औरत मिली जिसने रोने और भूखे बच्चे को गोद में उठाया और दूध पिलाने की कोशिश की, मगर बच्चा दूध न पिया। उसने कई बार कोशिश की, मगर कामयाबी न हुई। यहां अल्लाह ताला का एक और मंसूबा जारी था। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, खादमा हो, सी और औरत को तलाश करो। क्या तुम नहीं देख रहे कि ये भूख से मर जाएगा? एक और दूध पिलाने वाली आई, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सकी। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, हर ऐसी औरत लाओ जिसने हाल ही में बच्चा पैदा किया हो और दूध रखती हो। चाहे मजबूर करना पड़े, जो कोई दूध पिला सके उसे ले आओ। यूं बहुत सी औरतें लाई गईं। हर औरत ने बारी बारी रोते और जद्दोजहद करने वाले बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, मगर कोई कामयाब न हुआ। बच्चा जोर जोर से रोता रहा। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उस छोटे बच्चे के बारे में शदीद उलझन में थीं, जो दूध कबूल न करता था और भूख से मुसलसल रोता रहता था। ये कैसे मुमकिन था? वो सब औरतों के दूध को क्यों रद्द कर रहा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन शुरू से छुपकर सब कुछ देख रही थी, जब से उसे नदी में रखा गया था और फिर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। उसने सुना कि उसका भाई किसी भी औरत का दूध नहीं पीता। उसने फौरन समझ लिया कि ये मौका हजरत मूसा को उसकी हकीकी मां के पास वापस लाने का बेहतरीन मौका है। वो जल्दी से हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के पास गई और कहा, जैसा कि कुरान में भी बयान है, अलाअल्लकुम अंतुरूनी अहलन यरऊनहु लकुम व युहसिनून इलैह। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, उस बच्चे का रोना मेरा दिल तोड़ रहा है। उसके आंसू मुझे बहुत दुख दे रहे हैं। फौरन ये करें। हजरत मूसा की बहन फौरन महल से निकलकर अपने घर गईं, अपनी वालिदा को सब कुछ बताया और उसका हाथ पकड़कर फिरौन के महल ले आई। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने बच्चा उसकी मां हजरत याबित अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। जैसे ही बच्चा अपनी मां की गोद में आया, रोना बंद हो गया और सुकूत तारी हो गया। मां की मोहब्बत और खुशबू से बच्चे ने अपना सर घुमाया और दूध पीने लगा। आखिरकार वो परसुकून और मुकम्मल तौर पर दूध पी रहा था।
हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उस औरत की आमद से बहुत खुश हुईं। जब उन्होंने देखा कि बच्चा दूध पी रहा है तो उस माँ को महल में जगह दी और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। यूं हजरत मूसा की माँ रोजाना अपने बेटे को देख सकती थीं और परसुकून जिंदगी गुजार सकती थीं। महल का ये छोटा बच्चा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की मोहब्बत और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की शफकत से सबके दिल जीत चुका था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चलने की उम्र हासिल की, एक दिन फिरौन ने उसे गोद में उठाया तो हजरत मूसा ने उसकी दाढ़ी खींच दी। फिरौन उस पर इंतहाई गुस्से में आ गया और जहन में गहरे ख्यालात आए। वो हमेशा अपने माल, तख्त और सल्तनत खोने के खौफ में मुब्तला रहता था। शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला, ये बच्चा शायद वही है जो मेरे ख्वाब में आया था, जो मेरे तख्त और सल्तनत छीनेगा। उसने कहा, फौरी तौर पर फांसी के अहलकारों को बुलाओ, ये वही है। लेकिन हजरत आसिया अलैहिस्सलाम फौरन कूद कर बोली, ये छोटे बच्चे ने किस गुनाह के सबब मौत का मुस्तहिक है? फिरौन ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि उसने मेरे साथ क्या किया और मुझे कैसे तमस्खुर किया? हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो सिर्फ बच्चा है, उसे कुछ मालूम नहीं। फिरौन ने कहा, नहीं, ये बच्चा मुस्तकबिल में मुझे तबाह कर देगा। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून लहजे में कहा, बराह करम दोबारा गौर करें, यह अभी बहुत छोटा है, अभी उसके अंदर कोई समझ बूझ नहीं थी। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ मैं तुम्हें साबित कर दूं। देखो, एक प्लेट में कुछ कीमती जवाहरात और कीमती अशिया रखेंगे और दूसरी प्लेट में कुछ जलती हुई कोयले की टिकियां रखेंगे। अगर बच्चा जवाहरात की तरफ हाथ बढ़ाए तो वो होशियार है और तुम उसे कत्ल कर सकते हो, लेकिन अगर वो जवाहरात को छोड़कर जलती हुई कोयले की तरफ जाए तो तुम जान जाओगे कि ये अभी सिर्फ एक बच्चा है जो कुछ नहीं जानता। फिरौन को ये ख्याल पसंद आया और उसने उसे मंजूर कर लिया। प्लेटें लाई गईं और जैसा हमेशा होता है, अल्लाह ताला की इजाजत से एक दाना वाकया होने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवाहरात की तरफ हाथ बढ़ाने वाले थे कि अल्लाह ताला ने उसका हाथ जलती हुई कोयले की तरफ मोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलती हुई कोयला उठाकर अपने मुंह की तरफ लाया और उसकी जबान जल गई। कहा जाता है कि इसी वाक़े की वजह से बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ी सी गुफ्तार में दुश्वारी हुई। इस वाक़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की हिफाजत में फिरौन के महल में बड़े हुए और उन्हें माँ की मानिंद देखा। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की हिम्मत और ईमान की बदौलत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मजबूत हुए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महल में बड़े हुए, एक दिन किसी झगड़े के दौरान उन्होंने गलती से फिरौन के एक नान वाले को मार दिया। ये खबर फैल गई और फिरौन और उसके लोग हजरत मूसा की जान लेना चाहते थे ताकि उसकी जान के बदले इंसाफ हो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि वो मिस्र छोड़ दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर मदीन की जमीन की तरफ चले गए, जहां वो आबाद हुए, शादी की और कई साल वहां कयाम किया। कई साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और खानदान के साथ मिस्र वापस जाने का इरादा किया। रास्ते में जबल तौर के करीब उन्होंने आग देखी। जब वो आग के करीब गए, अल्लाह ताला ने उन्हें वही दी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि वो फिरौन के पास जाएं और बनी इसराइल को आज़ाद कराएं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 बड़े मोजज़े भी अता किए। जब वो अपनी लाठी जमीन पर डाले तो वो सांप बन गई, और जब अपने हाथ को शर्ट के अंदर रखा और बाहर निकाला तो वो रोशन, सफेद और चमकदार नजर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल गए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और मोजज़े दिखाए। लेकिन फिरौन ने इन मोजज़ात को जादू कहा और मुल्क के बेहतरीन जादूगर जमा करने का फैसला किया ताकि लोग हजरत मूसा पर ईमान न लाएं। एक दिन मुकर्रर किया गया, लोग जमा हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों के सामने खड़े हुए। मुकाबले के आगाज से पहले हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने शदीद उम्मीद और चाहत के साथ दुआ शुरू की। वो तवील वक्त तक दुआ करती रहीं। देखने वालों ने सोचा कि वो फिरौन की कामयाबी के लिए दुआ कर रही हैं,
लेकिन हकीकत में वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फतह के लिए दुआ कर रही थीं। फिर वो दिन आया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगर एक दूसरे के सामने खड़े हुए। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम महल की बालकोनी से ये मंजर देख रही थीं। पहले जादूगर अपने रस्सियों और छिड़ियां फेंकते और जादू के जरिए ऐसा जाहिर करते कि ये चीजें हरकत कर रही हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी और अल्लाह ताला की इजाजत से उनकी लाठी ने जादूगरों की पैदा की हुई तमाम चीजें निगल ली। जादूगरों ने यह देखकर हक को समझा और फौरन सजदे में गिरकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। ये देखकर फिरौन बहुत गुस्से में आ गया। उसने जादूगरों को धमकाया और सजा के खौफ से डराने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपने ईमान से पीछे न हटे। उसी लम्हे जब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने यह मोजज़ा देखा, उन्होंने भी कहा, मैं हजरत मूसा और हजरत हारून के रब पर ईमान लाती हूँ। यकीनन वो अकेली नहीं थी। बहुत से लोग जो इस मोजज़े को देख रहे थे, उन्होंने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना शुरू कर दिया। फिरौन उन लोगों को गिरफ्तार करके अजाब देता रहा। इस वजह से बहुत से मोमिन खुफिया तौर पर इबादत करते। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उनमें से एक थीं। वो एक मुखलिस औरत थीं, अपने ईमान में मजबूत। जब इबादत का वक्त आता, चाहे वो फिरौन के करीब महल में ही क्यों ना हो, वो बहाना बनाकर अपने कमरे में जाती और खुफिया तौर पर अल्लाह से दुआ करती। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने तवील अरसे तक अपने ईमान और इबादत को छुपाया। महल में और भी कुछ लोग थे जो खुफिया तौर पर ईमान रखते थे। उनमें एक औरत मशीयता थी जो फिरौन की बेटी के बाल संवारने की जिम्मेदार थी। एक दिन मशीयता ने कंघी गिरा दी। उसे उठाते हुए कहा, बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी ने पूछा, क्या तुम मेरे बाप के नाम पर कह रही हो? मशीयता ने जवाब दिया, वो मेरा रब भी है और तुम्हारे बाप का रब भी। ये सुनकर लड़की गई और अपने वालिद को बता दिया। फिरौन ने हुक्म दिया कि एक बड़ा तांबे का भट्टा बनाया जाए और गर्म किया जाए और मशीयता और उसके बच्चे को उसमें डालने का हुक्म दिया। पहले मशीयता को धमकाया गया कि अगर उसने ईमान न छोड़ा तो उसके बच्चे को आग में डाल दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मशीयता की मदद की और उसका छोटा बच्चा उससे बोला, सब्र करो क्योंकि तुम हक पर हो। ये सुनकर मशीयता ने रजामंदी से अपने बच्चे के साथ भट्ठा में जाने का फैसला किया और कुर्बानी के जरिए जन्नत तक पहुंच गई। यहां एक छोटी बात याद दिलाना जरूरी है। बरसों पहले एक नौजवान लड़की जो आग में मर गई थी, एक मुसलमान के ख्वाब में आई। लड़की ने कहा कि हालांकि लोग कहते हैं कि वो जलकर मर गई, वो हैरान थी क्योंकि उसने कुछ महसूस नहीं किया। उसने बताया कि अब वो एक बहुत खूबसूरत जगह में है जो अमन और सुकून से भरी हुई है। लिहाजा अगर हम आंखों से देखें भी कि लोग जल रहे हैं, तो सिर्फ वो लोग और अल्लाह जानते हैं कि हकीकत में वो क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह रहमो करम वाला है। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की रूहानी हालत, उसका रद्द अमल इंतहाई सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे से भरपूर था। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम महल की खिड़की से सब कुछ देख रही थीं। जब मशीयता और उसका बच्चा शहीद हुए, हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी रूहें आसमान की तरफ बुलंद हो गई हैं। ये मंजर उनके ईमान को और मजबूत और उनकी इबादत को और गहरा कर गया। इसी रूहानी हालत में जब वो फरिश्तों को देख रही थीं, उनके शौहर फिरौन अचानक कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने मशीयता के बारे में बात शुरू की कि कैसे उस पर अजाब डाला गया। फिरौन की बात खत्म करने के बाद हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, शर्म तुम पर। वाह फिरौन, कैसे तुम अल्लाह के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत रखते हो, कैसे तुम मोमिनों को अजाब देते हो। फिरौन उन गैर मुतवक्के बातों से हैरान बोला, शायद वो जुनून जो उस औरत पर आया था तुम पर भी आ गया है। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने बेखौफ जवाब दिया, जान लो मैं अल्लाह पर ईमान लाई हूं जो तुम्हारा, मेरा और तमाम जहानों का रब है। इसके बाद फिरौन ने हजरत आसिया की मां यानी अपनी सास को बुलाया और कहा, जैसा मेरी बेटी की बाल संवारने वाली पागल हुई, तुम्हारी बेटी हजरत आसिया भी पागल हो गई है। फिर फिरौन ने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम से कहा, या तुम मेरी इताअत करो, और फिर कमरे से निकल गया। हजरत आसिया की मां करीब आए और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को
फिरौन की इताअत करने की तलकीन की, लेकिन हजरत आसिया ने पुख्ता लहजे में कहा, ऐ माँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं अल्लाह के खिलाफ बगावत करूं और कुफ्र इख्तियार करूं तो जान लो कि यह कभी नहीं होगा। यह सुनकर फिरौन इंतहाई गुस्से में आ गया। उसने हुक्म दिया कि 4 खंबे जमीन में गाड़ दिए जाएं। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के हाथ और पांव उन खंभों से बांध दिए गए और उन्हें जलती हुई धूप में छोड़ दिया गया। जब वो वहां थीं, फरिश्ते आए और अपने परों से हजरत आसिया अलैहिस्सलाम पर साया डाल दिया। एक रिवायत के मुताबिक इसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से उन्हें इशारा किया ताकि अपनी हालत बयान कर सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि हजरत आसिया के अजाब को हल्का करे। इस दौरान हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना दे, मुझे फिरौन और उसके बुरे आमाल से बचा और मुझे जालिम लोगों से महफूज रख। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें फरमाया, अपना सर उठाओ। जब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने सर उठाया तो उन्होंने जन्नत में मोतियों से बना महल देखा और फौरन मुस्कुरा दिया। जब फिरौन ने उनका मुस्कुराना देखा तो चलाया, देखो ये पागल औरत जो अजाब में भी हंसती है। लेकिन भारी पत्थर गिरने से पहले अल्लाह ताला ने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का मज़ार मिस्र में मौजूद है, मगर ये मालूम नहीं कि आप किस उम्र में वफात पा गईं। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और काफिर बीवी का जिक्र उनके लिए किया जो कुफ्र इख्तियार करते हैं, और फिरौन की बीवी हजरत आसिया और हजरत मरियम का जिक्र उनके लिए किया जो ईमान लाते हैं। ये सब आज के मोमिनीन के लिए ईमान और पुख्ता इरादे की मिसालें हैं। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब की इताअत इस कदर की कि सबसे सरकश और अल्लाह से दूर शख्स यानी फिरौन भी उनके ईमान को नुकसान न पहुंचा सका। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम एक वलिया, अल्लाह की नज़दीक दोस्त और सिद्दीकीन में से एक थीं। उन्होंने दुनिया की सल्तनत के लुत्फ उठाने की बजाय मौत को इख्तियार किया और दुनिया की आसाइशों में जीने के बजाय दुख सहने को तरजीह दी। जब आप खुद को तन्हा महसूस करें, चाहे तमाम कायनात आपके गिर्द भी मौजूद हो, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। ये वीडियो भी इसी तरह के दिल टूटे लोगों तक पहुंचने के लिए हिमायत की मोहताज है, ताकि YouTube के समंदर में खो न जाए। हर नया सब्सक्राइबर एक और दिल तक पहुंचने में मदद करता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट छोड़ना न भूलें। आप वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी मदद कर सकते हैं। बस चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।